Doordarshan, let's listen. Exemption limit for 12 lakh rupees, but you also mentioned a slab while you were in your speech, so people got a little confused as to whether they have to pay the tax and get a full rebate after that, because the idea is that there's no tax for people who earn 12 lakh rupees. Could you clarify that, ma'am? Yes, you're right in saying there is a rebate being given. Rebate is when we are saying to that extent you don't need to pay the tax. So the rates are given, and the rates, I'd like to take this opportunity to tell your viewers that the rates are far lesser than the rates which are prevailing as of today. So one, with the simplification, rate reduction, and also a smooth flow of rate without any jumps, and higher incomes also coming into the lower slab. So the benefit of this income tax reduction that we've done are not just in saying up to a certain income you will pay no tax, but across the board for all incomes the rate is brought down. Yes. Up to 12 lakh, not only has the rate come down, but we are saying whatever is the tax incidence falling on the individual will be rebated out, yes, so that they don't have to pay any tax. So when we say rebate, we are saying you don't pay and then expect us to give a rebate in the sense of return, okay, right, refund. It is, you're not going to pay tax, but that is the amount you should have paid per the tax rates that we've given. Why do we give the rates? We give the rates because this will apply, every band, income band has a particular rate, and people who are earning higher income would to that extent say my first 0 to 4 will be at nil rate, 4 to something else will be at 5%, and so on. So for even his income those rates will apply. If I had kept 12 up to 12 nil rate, it will mean even people who are earning very high amounts will up to 12 not pay any tax at all. Okay. That's not the intent. The intent is to benefit the middle class, okay, but not to say that others should not get any tax rate. They will get by the reduced tax rates, sure, rather than they having to also get covered under the 12 lakh. Therefore the differential approach, and people who would pay the who will calculate their tax based on the rate given will know there is a rebate up to 12 lakhs and they don't need to pay it. मैम शायद ये इस बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट है जो भी मार्क्स सर ने आपसे सवाल किया, और मेरी गुजारिश है आप थोड़ा सा थैंक यू। और क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा तोहफा इसलिए है क्योंकि जैसा कि अभी वित्त मंत्री मैम ने बताया कि 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख के ऊपर जैसे ही आपकी आमदनी जाती है आपको टैक्स का रिटर्न भरना जरूरी होगा, और उसके बाद आप रिबेट के आधार पर आपको कैलकुलेशंस के जरिए ये बताया गया कि 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप सैलरीड हैं तो शायद 13.5 लाख तक, 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। मैम लेकिन इसके पीछे का अर्थशास्त्र क्या है? इतना बड़ा आपने रेवेन्यू फॉरगॉन किया, क्यों किया ऐसा? जी नहीं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसमें उनके गाइडेंस था कि टैक्स फोरगॉन के कैलकुलेशन से हट करके जनता के हाथ में वापस कितना पैसा, क्योंकि ये लोग कौन है? ये टैक्स पेयर्स है। जनता के हाथ में पैसा देना है तो अलग विषय है, हम अनाज दे रहे हैं मुफ्त में, लोगों को सीनियर सिटीजन्स गरीबी रेखा के नीचे जो है उनको पेंशन मिल रही है, ईपीएफओ में पेमेंट्स मिल रही है, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं। मगर ये कैटेगरी कौन है? ये टैक्स पेयर कैटेगरी है, ज्यादातर चला रहा है। उनके लिए राहत देने के लिए प्रधानमंत्री जी का एक सुझाव था कि आप कुछ ऐसे कैलकुलेशन करो कि टैक्स पेयर ऑनेस्ट टैक्स पेयर से पे कर रहे हैं, उनको क्या हम दे पाएंगे, उसके लिए कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके आ जाओ। सो जब हम गए वो तुरंत इसको हाँ बरवाए कि हाँ दे दो। सो मैं इसको
इनकम फोरगॉन के रास्ते से नहीं देख रही हूं, मगर जनता के हाथ में पैसा, कौन जनता? जो टैक्स पेयर। Ma'am, also with regard to MSMEs, there are many announcements, but you've also made an additional 1.5 lakh crore credit guarantee for MSMEs for the next 5 years. The question comes to mind for the MSMEs is that the credit is available, but at what rates? How will they get it? That's right. That is why, if you remember, in the last budget in July, I had very clearly said that SIDBI will be now directed to open branches in industrial MSME clusters. Ministry of MSME has more than 180, if I remember the number correct, clusters all over the country where MSMEs are located in one area. So in each one of these clusters, eventually in a matter of 3 years, we want to have as SIDBI branches. When SIDBI directly lends, SIDBI normally lends it through the banks, and the banks sometimes pass it on to the NBFCs. They in turn pass it on to small finance companies, who obviously for every stage jack up the interest rate. Whereas here, when SIDBI does it directly, the rate of interest is going to be reasonable. And also the usual complaint from MSME is any lender doesn't understand their business cycle. When are the term loans required? What kind of term loans are required? Like, for instance, you'll recall, in the last budget, I had very clearly come up, for the first time ever in this country, MSMEs used to always get working capital, but they never had term loans. We have, for plant and machinery, we in July budget offered that. But normally, the MSMEs do have a little pet peeve, as I can put it, saying our businesses and business cycles are never understood by the bankers. But when SIDBI operates, they understand the MSME's business cycle, when they would need working capital enhanced, when we can expect them to pay back, and so on. So our approach now is the banks will continue doing what they're doing, but the emphasis would be if SIDBI can directly lend to MSMEs, thereby the interest be ground to a real number. माननीय वित्त मंत्री जी, आपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब डीडी नेटवर्क पर अपना संबोधन दिया, बजट पर पहला रिएक्शन, तो उन्होंने आपका धन्यवाद किया, आपकी पूरी बजट टीम का धन्यवाद किया, और उन्होंने कहा कि ये बजट फोर्स मल्टीप्लायर है, ये बजट कंजम्पशन को बढ़ावा देता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है और ग्रोथ को बढ़ावा देता है। मैम, क्या आप इसे एक्सप्लेन करेंगी? सब 7% ग्रोथ लेवल से हम कैसे देश को 8%, 9%, 10% के लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे? ये बजट उसमें क्या भूमिका निभाएगा? इस बजट के द्वारा हम वेरी क्लियरली एक बात रख रहे हैं कि जनता के लिए क्रेडिट का अवेलेबिलिटी बिल्कुल आवश्यक है। क्रेडिट का अवेलेबिलिटी उनके बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, और जब वेजेस का भी इंक्रीज होता, तब लोगों के मन में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का भी एक सोच आता है। नहीं तो वो कट करके उनका सेविंग्स को जितना डालना है उतना करके बाकी सबका उनका खर्च को नैरो करते हैं। हम चाहते हैं कि जस्ट एज कंपनियों का उनका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में डिमांड बढ़े, फिर उनका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि सेविंग्स भी बढ़े और जनता के हाथ में पैसा भी बचे, जिससे उनके बच्चे के एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उन सब में खर्च करने के लिए उनका कुछ हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, ये हाथों में पैसा रखने वाले विषय जनता के सभी वर्गों के लिए हम नहीं कर रहे हैं। टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट करके उनको दे रहे हैं, मिडिल क्लास को दे रहे हैं, जिससे उनका मन में जो डाउट आने लगा कि इस सरकार से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। मिडिल क्लास को तो मोदी जी पहले से रिस्पेक्ट करते थे, टैक्स पेयर को रेड कार्पेट, रेड रिबन, आई मीन लाइक there shall not be any corruption, we shall treat taxpayers with respect, taxpayer charter भी हम ले आए। उसी श्रृंखला में ये भी एक कदम है जिसमें हम टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे ट्रस्ट, उनके ऊपर ट्रस्ट रख करके बिजनेस चलाने के लिए, आगे देश को ले आने के लिए। ट्रस्ट शब्द का प्रयोग आपने 12 बार किया पूरी स्पीच में। ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच तो स्पष्ट तौर पर दिखता है, लेकिन चाहे वो कैपेक्स में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो या फिर
टैक्स रिबेट के जरिए, नई कर व्यवस्था के जरिए लोगों के कंजम्पशन को बढ़ावा देना हो, या फिर फिस्कल डिसिप्लिन के जरिए फिस्कल डेफिसिट को लगातार नीचे कम करना हो। ये तीनों ही माध्यम से हम शायद निवेशकों को ये कहना चाहते हैं कि आप आइए, देश में निवेश करिए और भारत तैयार है भविष्य के लिए। इसके साथ BIT का रिव्यू भी हम कर रहे हैं, जिससे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट्स जो जब देश के साथ दूसरे देश के साथ करते हैं बायलैटरली, उसका भी फॉर्मेट भी और उसका सेक्शंस का भी और रोबस्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और सर्टेनली इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो भी हम मेशर उठाना है उसको उठाएंगे। And you've announced support for the leather, footwear and products industry in terms of toys, in terms of technology and infrastructure, I think. So what kind of support is this, ma'am? I mean, what can they expect? As it is, you find that we have been giving PLI for many of the products, particularly when it came to electronics, and that has paid off very well. There are some other sectors where we need to give a bit more push, but these three sectors we want to understand their requirements and support them. Just as even in this budget, for instance, I have reduced the duty, import duty on certain critical minerals, because they are very important for us, particularly for the MSMEs, for improving on their manufacturing capabilities. Similarly, for leather, we've also tweaked the import duty and export duty for some other items, so that some valued raw material can go from India out, so that small tanners can benefit from it, the crushed leather. So the measures have been not just through one route of incentivizing production. Measures are also for cost cutting, in terms of input costs will have to be brought down. If essential raw materials which are not available in India have to be brought from elsewhere, we've enabled reduction in duties as well. What about transforming India Post, ma'am? And now you're making it into a public logistics organization. What exactly, I mean, how is this going to be done? And I mean, how does it affect the kind of employment? You know, actually speaking, even today, the Dak Sevaks in the villages are performing so many multifarious roles. They go sell insurance, they also talk to them about certain kind of services which the post office can give. They run a small payments bank. All this is being done by the post office. There is a huge network all over the country. But if we are not able to optimally utilize them, they also can fall into bad days. As it is, there is not enough support which have been given for very many other plans of the India Post. There was, of course, some revival done some years back. So we thought, why is it that we have this wide network, Indian assets, huge connect they have with the people. In fact, the local postman or the Dak Sevak used to be the first one people saw as a representative of government, central government. Post office brings money, checks, or even the pension payment once upon a time. Nowadays, everything goes through digital. They were the connect for us. You successfully finished an interview, you got a job, the letter would come through the Dak Sevak. Zamana gaya. So we want to revive that connect that India Post has with the people and make them also one of the nerve centers for India's growth. Moreover, we want them to also take up the logistics function, because many global marketing companies today and retailers today want network all over the country. These are networks available for us. So we want to give them the facility. पिन कोड 1.5 लाख से ज़्यादा पिन कोड्स हैं देश में और वो सारे इंडिया पोस्ट को रिवाइव करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम। मैम, अब मैं आना चाहता हूँ विकसित भारत के डेफिनेशन को। हम लोग अभी तक इस उलझन में थे कि विकसित भारत का मतलब है क्या। ये बजट हमें स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि 2047 तक एक भी व्यक्ति इस देश में गरीब नहीं होगा। सभी व्यक्तियों को उच्च शिक्षा मिलेगी, सभी को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, सभी को स्किल्ड और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 70% महिलाएं आपके वर्कफोर्स का हिस्सा होंगी, वर्कफोर्स में आएंगे। ये सब हम कैसे कर पाएंगे? और जो फ्यूचर के बजट्स हैं, फ्यूचर के प्लान्स हैं, क्योंकि आपने 5 साल 10 साल का इसमें विजन भी रखा है, क्या इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके आगे की आर्थिक नीतियां चलेंगी? बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ केंद्रीय बजट का नहीं,
इससे इंडिकेशन स्टेट्स को भी मिलता है कि हर एक स्टेट बोल रहे हैं कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक बिल्डअप करेंगे, दूसरे स्टेट बोलता है नहीं हम 1 ट्रिलियन नहीं उससे ज्यादा भी कोशिश करेंगे। आखिर देश भर में जब विकसित भारत का चर्चा जब हो रही है, उसका व्हाट आर द इंडिकेटर्स, उसमें से उसके द्वारा क्या अचीव करना चाह रहे हैं, इसका बहुत विस्तार से चर्चा गोष्ठी हुई। कमेटी सेक्रेटरीज, सीनियर सेक्रेटरीज का कमेटी भी बिठाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पिछले 1 साल उनके द्वारा बहुत डिस्कशन के बाद तय हुआ कि ये हमें चाहिए विकसित भारत का स्टेटस अटेन करने के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारे हर एक प्लानिंग में हर एक गोल को अचीव करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, इस स्कीम में कौन सा करना चाहिए, इसके लिए कितना पैसा इस साल देना है, 10 साल के बाद देना पड़ेगा, ये सब का चर्चा होता है। इसीलिए विस्तार से प्लान कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए। सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, जब पैसा स्टेट्स को भी जाता है वो भी उनके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आजकल ये रास्ते अपना रहे हैं, जिससे हम सब इकट्ठा होकर के भारत को उस दिशा में ले सकते हैं। और अगर मैं एक फॉलोअप किस पे कर पाऊं मैम, आपने एक फिगर दिया है कि आपने स्टेट को पिछले साल के मुकाबले 4,91,000 करोड़ रुपए 4.9 लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा दिया है इस बार। तो आपने तो अपना काम कर दिया केंद्र सरकार के बजट के जरिए, आपने पैसे भी स्टेट्स को दे दिए। स्टेट्स को आपने बोला कि भाई अगले 50 साल के लिए हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे अगर आप कैपेक्स बढ़ाते हैं या फिर रिफॉर्म्स करते हैं। स्टेट्स को साथ लेके कैसे चलेंगे मैम विकसित भारत के इस विजन को प्राप्त करने के लिए? एक्चुअली आपको रिस्पॉन्ड करना है तो तुरंत ये बोलूंगी, 21 से ये 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं हम। इंटरेस्ट मतलब रुचि इसमें स्टेट्स के साथ से बात करने में आपको समझ में आएगा। स्टेट्स इसको इतना जोश से ले रहे हैं, वो उनको इससे फायदा हो रही है। उनका बहुत देर से, बहुत सालों से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रही है, उनको ये चाहिए। और उनके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इंटरेस्ट फ्री जब पैसा मिलता है वो भी तुरंत इसमें काम में लग जाते हैं। इसीलिए स्टेट्स के साथ काम करना इसमें चैलेंज नहीं है, इसमें चैलेंज ये है कि उनके जितना डिमांड है, हाँ थर्स्ट है उसको कैसे पूरा कैसे करें, वही है। You've mentioned asset monetization once again, and you have a 10 lakh crore target for it. How different is this from disinvestment and privatization, which a lot of people were hoping to look at? Disinvestment and asset monetization are completely different. We had said this even earlier. Asset monetization is not selling away the property. It is more optimizing its use and more finding ways for people to use it, because if it's lying idle, if there are uses to which they can be put even by private parties, we would ask them to come and bid for it and take it as a lease, use it as much as they want, earn their money out of it, give also something to the government. The properties going to remain with us, but it is a way in which you can monetize that asset, otherwise which lies idle. This is what we've done even earlier. And based on the kind of reception we've had, we are identifying more assets which can be monetized. Indeed, and you've also talked about a light touch approach for regulation. Regulators. And I mean, even here there's going to be some sort of regulation in the asset monetization. So could you explain to us, for people who are interested in participating in this project, what would they require? We've got a lot of consultation going with the states. Many states have identified such assets which they want to use for their state's benefit. So they may be assets held by the center, they may be assets held by some public sector undertaking in the center, but it's of greater use for a state's purpose. They would talk it out with the center and see how best. Not just the government, even the private in that area might want to understand how best that can be put to better use. So the methodology of this getting executed has already been shown in the first phase of asset monetization that we had announced. I remember it was during 2020, in one of those several mini budgets. I had announced this, and it has picked up a lot of momentum since after. Now we want to have it benefit a lot more other assets. Clearly what comes of it is going to go back in building newer assets. That's why I said plow back. माननीय वित्त मंत्री जी, इस समय महाकुंभ 2025
का आयोजन प्रयागराज में चल रहा है और हम सभी आपकी सनातन सभ्यता के प्रति जो दृढ़ विश्वास है उससे भी परिचित हैं। महालक्ष्मी का भी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई। इस बजट को भी बनाने में आपने बहुत मंथन किया होगा। तो मेरा आपसे दो प्रश्न है। हमें गर्व होता है जब माननीय राष्ट्रपति जी आपको दही चीनी खिला करके विदा करती हैं बजट, और जो दो महिलाओं को देखते हुए विश्व पटल पर बहुत ही गर्व महसूस होता है और आपने बजट में महिलाओं पर भी बहुत फोकस किया है, पहली बात ये। और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडियन नॉलेज रिपोजिटरी, जो भारतीय ज्ञान मनीषा है, उसके लिए क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं शायद कर पाए हैं, उसके लिए अब एक नया सिस्टम को आप बनाने जा रहे हैं। प्लीज उस पर प्रकाश डालें। इसमें दो अंश है। वन, मैनस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज करने का, उसके लिए देश भर में एक्टिविटी चलेगी क्योंकि ज़्यादातर मैनस्क्रिप्ट्स इवन नाउ प्राइवेट हैंड्स में है। और हमारे इच्छा ये नहीं है कि उनके कॉपीराइट को ले या उनका पोसेशन राइट को ले, हम सिर्फ उसको डिजिटलाइज करने तक ही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। सो उससे देश भर का हमारे धरोहर है उसका एक जगह पर डिजिटल फॉर्मेट में देख पाएंगे। एंड इसमें रिसर्च करने वाले लोग का इंटरेस्ट भी है। कहीं इधर उधर जा करके वो ढूंढना अनावश्यक है, रिपोजिटरी अगर बन जाता है। इसीलिए इसके ऊपर इस बार घोषणा करने की आवश्यकता है और ये रिपोजिटरी बनाने के बाद सबके लिए इसको एक्सेस देने का भी हम प्लान कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मैं इस बजट में हर स्कीम में, हर एक में ये मेंशन करना है कि इससे गरीब, महिला, अन्नदाता, नारी, युवा, सबके लिए बेनिफिट, हर एक स्कीम को मैं वो बात बोल सकती हूँ, मगर वो नहीं बोल, पहले से ही हम बोल रहे हैं। अगर हम 4 इंजन देख रहे हैं, वैसे ही 4 ग्रुप, जनता के ग्रुप देख रहे हैं जिसको हम टारगेट रख के उन तक पहुंचाने के लिए हर स्कीम को डिजाइन करना। इसीलिए हर स्कीम में एक ना एक, चाहे वो गरीब और महिला या युवा और गरीब और अन्नदाता, सब कनेक्टेड है। क्योंकि पहली बार शायद कोई महिला उद्यमी कोई आती है तो उसके लिए आपने टर्म लोन की व्यवस्था की, इसलिए मैंने ये सवाल किया। ये नया स्कीम है, इसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। हम पिछले कम से कम 9 साल से ये स्टैंड अप इंडिया का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें अच्छा सक्सेस है, मगर उससे आगे बढ़ाने के लिए ये कोशिश हो रही है जिसमें और 50 करोड़ लोग को जोड़ने के लिए। सो दूर दराज इलाके में जहां बैंक ब्रांच है, उस बैंक के ब्रांच के द्वारा इंक्रीज्ड अमाउंट दे करके इनोवेटिव आइडियाज के साथ अगर कोई SC हो, ST हो या महिला हो आते हैं तो उनको बैंक के द्वारा सिक्योर्ड लोन, मतलब 2 करोड़ का टर्म लोन। हाँ जी 50 करोड़, 50 का ये बहुत बड़ा एग्जैक्ट नंबर मैं बोलती हूँ आपको। फिर भी इसमें हम ये क्या बोलते हैं, कोलैटरल फ्री लोन है, इसीलिए जनता तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। Ma'am, you put a lot of money in the hands of the middle class, and obviously aspirationally they'll want to now look for more affordable housing, and the Swamis scheme also you've mentioned. Yes. So in this some 15,000 crores for another 1 lakh units for the middle class to be ready, I think, in this year. Is there enough supply to meet this need, ma'am? No, actually for affordable housing. Yes. No, actually there are a lot more projects which are unfortunately stuck, and actually middle class is suffering because they have taken this loan and they are paying their EMI with an expectation that the house would be given within n number of years. But now it is delayed for 2 years, 3 years, or in some cases even 4 years. So this Swami First, which was launched in end of 2019, early 20, has actually shown good positive output. It is very carefully monitored and money is released in a very layered fashion. So nobody again is going to divert the money for anything else. They are RERA approved projects, and therefore there is a scheme of things which runs in a systematic fashion, and systematic fashion, and we are able to also track the developments. And that is why we thought this is a safer way and also a sure way
of making people get their apartments, which is long overdue. And what are your expectations from increasing the FDI limit in insurance from 74% to 100%? Because even now a lot of companies who have shown interest, or investors who have shown interest from abroad, are seeking ownership, and because of that there is a greater possibility of money coming much more. Of course, we have very clearly said all the premium collected in India should be invested in India. Otherwise, there used to be this doubt saying, what happens if they come collect the insurance premium and go away or something like that. So we've made enough guardrails for it. वित्त मंत्री जी, अब मैं 4 इंजन जो आपने बताया उसमें से मैन्युफैक्चरिंग को टच करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो ग्रोथ ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओरिएंटेड है, और आपने स्वयं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स में इस पर फोकस किया है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो हम नया शुरू करने जा रहे हैं, लक्ष्य तो हमारा है कि जीडीपी में 17% के कंट्रीब्यूशन को बढ़ा करके 25% तक ले जाए। बहुत सालों से हम इसकी चर्चा सुन रहे हैं, जैसे जीएसटी की चर्चा हमने 17 सालों तक सुनी। क्या हम करने जा रहे हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में, और इसका आउटकम को क्या देखते हैं आप आउटकम के रूप में? इंडिया का पोटेंशियल एक्सपोर्ट में बहुत है, मगर जीएसटी आने से पहले तरह तरह के टैक्स का वजह से उनको कॉम्पिटिटिव बनना मुश्किल हुआ। अभी जीएसटी आ गए, उसमें आईजीएसटी है, एक्सपोर्ट करने वाले को टैक्स ही नहीं है। ऐसे टैक्सेशन के द्वारा हम राहत दे रहे हैं वैसे भी सिस्टम में। मगर आज ग्लोबल फ्लक्चुएशन जितने भी, वोलेटिलिटी एज दे से इट, जितने भी हैं, उसके कारण हमारे एक्सपोर्ट्स को नया मार्केट ढूंढने में दिक्कत हो रही है। फिर ऑल्सो उधर जाके बड़ा प्रोजेक्ट्स करने के बाद इधर इंश्योरेंस का ईसीजीसी के द्वारा, एग्जिम बैंक के द्वारा उनका जो भी सपोर्ट होना है एक्सपोर्ट क्रेडिट में, वो सपोर्ट देने के लिए उनको भी ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूशन करके एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को गारंटी देने के लिए उनका क्षमता बढ़ाना, वो एक कार्यक्रम है। फिर एक्सपोर्टर्स का दूसरा एक भी विषय आता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स में बहुत दिक्कत आते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ जैसे एक एरिया में है तो समुद्र तक जाना, क्योंकि हर एक्सपोर्ट एयर कार्गो बन नहीं सकते हैं, बहुत सारे सी कार्गो है, मगर सी कार्गो मतलब छत्तीसगढ़ से कोई नज़दीक वाले सी पोर्ट जाना भी उनको मुश्किल होता है। इन सभी विषयों को मन में रखते हुए कैसे इनके साथ सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो है 32 और सम नंबर, उन सब के साथ भी डिस्कशन करने के बाद कैसे इसको आगे लेके जाना है, ये सब वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें न्यू मार्केट के लिए, फिर भारत में ही रिवर्स बायर सेलर मीट रखने के लिए, फिर इसके साथ साथ अगर एफटीएस होता है, उस एफटीए में आपको कितना हम दे पाएंगे मार्केट एक्सेस, जितना उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म ले आना, ये सब इसमें शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग मिशन का प्लान पार्ट होगा ये। हाँ, और इसमें भारत नेट का वो ट्रेड वाला डिटेल्स का भी एक नया डिजिटल डेटा बैंक और डैशबोर्ड बनाने का भी एक बड़ा सा कदम है, उसका भी मैं घोषणा की। ये सब एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ही। And what's the purpose, ma'am, of the Maritime Development Fund? You have given a corpus of 25,000 crore rupees for this. We have several ports, and there are very many possible use cases in each one of them. Other than that, also there are ship breaking activities which are happening in India. Once upon a time we were a lead global ship breaking center, but today, because of the competition being different and the kind of environment consciousness which has come over, we have a problem there as well. Other than that, we also want to promote building of ships of a certain tonnage and no more, not smaller ones. Clearly, those which are essential for India's future, whether you want oil tankers, whether you want ships to carry certain container loads, we need support. That is why we've created. मैम, अब अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, चूंकि G20 के अध्यक्ष के तौर पर आपने पूरी दुनिया में वुमेन लेड डेवलपमेंट, डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ट्रांजिशन एक बड़ी ही प्रोमिनेंटली रखा भारत की ओर से। तो मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि
भारत की एनर्जी ट्रांजिशन का अपना खुद का मॉडल क्या होना चाहिए और आपने न्यूक्लियर पावर पर इतना बड़ा फोकस इस बजट में क्यों दिया है? हाँ, ये बहुत ही अहम अनाउंसमेंट है इस बजट के द्वारा। पिछले बजट में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में पंप्ड स्टोरेज का अनाउंसमेंट किया, जिसमें एक ही पानी है, एक बार बिजली उससे निकालना है या 2 बार वो निकालना है। पंप स्टोरेज का मतलब 2 बार उसी पानी को चलाते हुए, सो उससे कॉस्ट भी कम होता है, पावर जनरेशन भी ज़्यादा हो सकता है। ये सब करने के बावजूद भी हमें, और क्योंकि भारत का बिजली कंजम्पशन बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं आने वाले सालों में, हम परमानेंटली इसके लिए कुछ सोल्यूशन विच इज़ रिन्यूएबल करने के लिए कोशिश कर रहे थे। कोयला को वापस जाके थर्मल यूनिट लगाना नहीं है, मगर इसमें इसीलिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का सोच आया। भारत में ही उसका तकनीक अभी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में आ गए हैं। हम छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में अपने आप का टेक्नोलॉजी के विषय में सक्षम है, इसीलिए इस को प्रोत्साहन देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारत में ही जहाँ चाहिए वहाँ छोटे छोटे, पहले जो न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर्स बना कूडमकुलम जैसे, वो सब बड़ा बड़ा है, ये छोटा के कारण जहाँ चाहिए वहाँ लगा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलेंगे इसको। हाँ जी मैम, may I squeeze in one last question, ma'am, about you so many tax concessions and you have a fiscal deficit target of 4.4% of GDP. So, I mean, how is this going to be met? Where are you getting your other sources of revenue from? Well, I think we have worked out for ourselves as to how far we can go on this, and we are very clear that when the consumption increases because of more money in the people's hand, anyway some of this money would also be plowed back into the economy, which will generate revenue. So that is one. Second, I was talking about asset monetization. We'll certainly look at how best we can take that forward. So that will fall in place, and we are confident that it will work out. Tax net will also be, we'll make sure we'll widen the tax net. वित्त मंत्री जी, हमने कोई भी राजनीतिक सवाल आपसे नहीं किया, लेकिन ड्रीम बजट आपको याद होगा 1997 को कहा गया था, उसके बाद विकसित भारत का बजट, नए भारत का बजट। आप इस बजट को कैसे परिभाषित करना चाहेंगी? प्रधानमंत्री ने इसे पीपल्स बजट कहा है। बिल्कुल ये पीपल्स बजट है, क्योंकि जनता से जो आवाज आया कि हमारे लिए एजुकेशन के लिए फैसिलिटी बना दो, पोषण के लिए बच्चे के लिए कुछ करो, और हायर एजुकेशन के लिए हमें फैसिलिटी करके दिखाओ, मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश में जाकर हमारे फॉरेन एक्सचेंज को खर्च कर रहे हैं, या कि इधर मेडिकल एजुकेशन के सीट्स बढ़ा दो, 75,000 और 5 साल में करने वाले हैं नया सीट्स। सो ऐसे जनता से समय समय पर जो आवाज़ आ रही है, उसी को हम रिस्पॉन्ड करते हुए हर मेशर ले रहे हैं, और इसके कारण ही इनकम टैक्स का एक्ट को सिंप्लीफाई करने की घोषणा मैंने जुलाई बजट में की। अभी वो बिल लेके आ रहे हैं इस आने वाले सप्ताह में। वित्त मंत्री जी, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और जिस तरह से आपने कहा कि सबका साथ, ये आपका लक्ष्य है विकसित भारत के लिए, आपने समय समय पर समीक्षा की, सभी की सिफारिशें ली और उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। इस मंथन में जरूर कुछ न कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आपने कहा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एक पीपुल्स बजट इस देश को मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास प्रसारण में मेरे और मेरे सहयोगी मार्क पैट्रिक लिन के साथ सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।